جن کے پاس خدا کا کلام ہے، اس سے پہلے ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور آپ نے بہت کم ٹائم کے اندر سیکھنا ہے. اور کلام شروع کرنے سے پہلے بہنوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے ایک گزارش ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. جب آپ میرے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ آج کے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں گے. میرے ساتھ نکالیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے اعمال کی کتاب 19واں باب اور اس کی دوسری آیت، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جلدی سے نکالے. اور آپ بیٹا اس سے پہلے کہ دوسرا حوالہ جب بولا جی اعمال 5 باب اور اس کی 5 آیت آپ نے نکالی. ٹھیک ہے جی، اوکے. لکھا ہے جی، اور جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ غور سے سنیں. انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. اس نے کہا، بس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ. پالوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا. جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں اور نبوت کرنے لگے. وہ سب تمخین 12 آدمی تھے. پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. لیکن آخری آیت بڑے غور سے، لیکن جب بات سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریقے کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا. خداوند کا پاک کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے. میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم ڈے آف پینتیکوس یعنی کہ عید پینتیکوس کو منا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ عید پینتیکوس ایسٹر کے کتنے دنوں کے بعد آتا ہے؟ جی کلیسیا میں سے. جی بائبل پڑھا کریں، آپ کو پتا چلے. بائبل سٹڈی بھی یہاں پر ہوتی ہے، وہ جمعرات آیا کریں، آپ کو پتا چلے. ایسٹر کے 40 دن بعد. اور اگر آپ شاید پاؤں دھونے والی رسم اس کو کہتے ہیں پاس اوور. اور اگر آپ پاس اوور سے لیں تو پھر 50 دنوں کے بعد عید پینتیکوس آتا ہے. کتنے دنوں کے بعد؟ شاعر بانی سے لے کر آج تک عید پینتیکوس جو ہے 50 دنوں کے بعد آتا ہے. اگر آپ ایسٹر سے لیں تو پھر 40 دن کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب آج ہم نے سیکھنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا، کیونکہ سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ ایک دوسرے بات کریں گے تو سیکھیں گے. عید پینتیکوس کوئی بتا سکتا کیا ہے؟ بچوں میں سے، بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے، خادموں میں سے نہیں، ان کو پتا ہے. جی بھائی، آج ہماری عمر 40 سال 45 سال ہے، ہمیں عید پینتیکوس، عید سعود نہیں پتا. مسیحی ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے، یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں نہیں پتا عید پینتیکوس کیا ہے. جی بیٹے، وہ آپ کو نہیں پتا، بابو کو پتا ہے. جی بابو ذرا کھڑا ہو گیا، اونچی آواز. نہیں، عید پینتیکوس والے دن یسوع مسیح جی اٹھے نہیں. عید پینتیکوس والے دن ایک وعدہ پورا ہوا تھا. خدا نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں کو ایک کمرے میں رہنا اور ان کو کیا ملے گا؟ پاکرو ملے گا. مگر آپ بتائیں، سوال پھر آ گیا، پاکرو کیا ہے؟ جی اس کی نام پاکرو کیا ہے؟ پادری کی وائف کو بھی پتا نہ. جی پاکرو کیا ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ اب میں جاتا ہوں تیرے لیے کیا گا؟ خدا نے جس طرح آدم کو کیا تیرے لیے مددگار بناوا گا، تے خدا نے کلیسیا بھی کیا جب چکیا گیا کہ بھی ہوتے میں چلا، یہ تیرے دکھ کون سنے گا؟ کیا بشپ مجید سنے گا یا پادری اعظم یا بابا عاشق حیدر عاشق سنے گا؟ خدا نے کیا کہا کہ اب مددگار دے کے جاؤں گا. یہ مددگار کا نام کیا ہے؟ اور آج ہم پاکرو کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. غور نہ سننا.
تاکہ جب آپ اگلے سال کسی چرچ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں. اب پاک روح کی سٹوری کیا ہے, پاک روح کی ہسٹری کیا ہے؟ کیا میرے ساتھ اس کی سیر کرنا چاہیں گے, میرے ساتھ رہنا چاہیں گے, تفریح کرنا چاہیں گے, وزٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم نے آج بائبل مقدس کا وزٹ کرنا ہے اور بائبل مقدس میں سے ہم نے پاک روح کو سیکھنا ہے, جاننا ہے, جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے, جس کا آپ کو اس بات کا تو آپ ثبوت ہے نا آپ کے پاس کہ آپ کو نہیں پتہ. اب پاک روح کی ہسٹری جو ہے بائبل مقدس میں پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کے اندر جب خدا نے نظر کی تو زمین پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا, سنسان تھا اور ایسا ویران تھا, اور پانیوں پر کیا جنبش کرتی تھی؟ میں آپ کو شروع سے لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے, ورنہ یسوع مسیح دیاں 4 انجیلاں دے وچ بڑے حوالے بلکہ خطوں کے اندر بہت سے حوالے ہیں, مگر میں آپ کو شروع سے سیر کروانا چاہتا ہوں. کیا کروانا چاہتا ہوں؟ جب آپ کسی ملک میں جائیں نا, بشپ صاحب بابا جی گئے ہوئے ہیں ملکوں میں, وہاں پہ وزٹر ہوتا ہے جو آپ کو پھراتا ہے. اگر آپ اس کو پیسوں سے ہائر کرتے ہیں نا, ایک گائیڈر ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھراتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے جی یہ ہے, یہ تھا, یہ تھا. وہ ملک کا آپ کو سارا نقشہ پھرائے گا کیونکہ اس نے پیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے, آج میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو پاک روح کے بارے میں شروع سے تھوڑا سا آپ کو بتایا جائے. کچھ لوگ پاک روح کو نہیں مانتے, کچھ لوگ پاک روح کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں پاک روح ہے ہی نہیں, یہ مددگار ہے ہی نہیں, یہ ایک شخص ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایک غائبی روح ہے, کوئی کہتا ہے یہ علم کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ جو علم کرتے ہیں ان کے پاس ہی ہوتا ہے. آج ہم سیکھنے والے ہیں پاک روح کیا ہے. تو پاک روح خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ جب زمین سنسان اور ویران تھی, پانیوں پر کیا کرتا تھا؟ جنبش. پاک روح جنبش کرتا تھا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا آباد ہوئی, جب خدا نے کہا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, جب خدا نے کہا ستارے بن جائے تو کیا ہوا؟ جب خدا نے کہا آسمان بن جائے تو کیا ہوا؟ جب خدا نے کہا درخت بن جائے تو, جب خدا نے کہا انسان بنائے تو پھر انسان بھی بن گیا. کیا ہوا؟ انسان بھی بن گیا. جب یہ ساری چیزیں خدا کہتا گیا, بنتی گئی, اور پھر جیسے جیسے انسان بڑھے, جیسے جیسے انسان بڑھے تو انسان بننے سے پھر کیا ہوا؟ گناہ بھی دنیا کے اندر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگوں کے گناہ کا شور, ان کی بدکاریاں, ان کی حرام کاریاں, ان کا شور جو ہے وہ خدا کو آسمان پر سنائی دیا. کیا ہوا جی؟ خدا کو ہمارے گناہوں کا جو شور ہے وہ آسمان پر سنائی دیا. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا نوح کے زمانے کے اندر؟ ساری دنیا کو کیا کیا؟ آپ نے میرے ساتھ ہے, سون کو نہیں ہے دینا آج میں, ہاں جی, ساری دنیا کو ختم کر دیا, ملیا میٹ کر دیا, سوائے 8 لوگوں کے یا کچھ جانور کہہ لیں جو کشتی کے اندر تھے. اب جب پھر خدا نے, جب نوح نے سنوکتنی قربانی کی, جب اس نے خدا کے حضور میں اور سنوکتنی قربانی کی تو اس کی خوشبو جو ہے وہ خدا تک پہنچی, اور خدا کو اس خوشبو سے, اس قربانی سے لوگوں پر رحم آیا. اور خدا نے ایک وعدہ باندھا. وعدہ کیا تھا جی؟ وعدہ کیا تھا؟ اب میں ایسے لوگوں کو نشان دیا تھا. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بعد میں اس باتوں کی طرف, ابھی آپ کو صرف سیر کی طرف لے کے جا رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ خدا نے جب دوبارہ دنیا بنائی نوح کے بعد, تو خدا نے جب دنیا بنی تو خدا نے اپنے نبی بھیجے. کیا بھیجے؟ رسول بھیجے. جب خدا نبی بھیجتا گیا, جب رسول بھیجتا گیا, تو پھر یہ مناسب تھا کہ جس شخص کے ساتھ خدا کا روح بات کرتا تھا, خدا بات کرتا تھا, وہ گناہ کی وجہ سے روح دور ہو گیا, خدا کی دوری ہو گئی تھی آدم کی وجہ سے, اس کے پھل کھانے سے, گناہ کی وجہ سے. اب خدا پھر چاہتا تھا کہ میری ان کے ساتھ کیا ہو؟ بات چیت ہو, میں ان کے ساتھ رہوں. اب پھر جب خدا نے دنیا آباد کی تو پھر خدا نے جب نبی بھیجے تو نبیوں کے ذریعہ سے خدا کن سے بات کرتا تھا؟ لوگوں سے بات کرتا تھا. مگر یہاں پر ایک بھید والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روح آتا تھا نبیوں کے پاس, اور وہ ان کو میسیج دیتا تھا, اور پھر واپس روح ٹھہرتا نہیں تھا. روح آیا, نبی کہتے ہیں کہ جی خدا کا روح مجھ پر زور سے نازل ہوا, مجھے میسیج دیا, مجھے نبوت کی. اور نبی جو تھے وہ نبوت کرتے, بات کرتے, لوگوں کو خدا کا میسیج دیتے. ہم جانتے ہیں
बुजुर्ग यिर्मयाह को देख लें, नेहमिया को देख लें, हिजकिय्याह को देख लें, यशायाह को देख लें, अमूस को देख लें, हिजकी की किताब के अंदर आप देख लें, आपको पुराने अहदनामे में नबियों की किताब जो है, साहिबुल अंबिया को देखें, आप अंबियाज़ादों को देखें, जिनको खुदा ने इस्तेमाल किया, खुदा ने उनको मैसेज दिया। क्या दिया जी? मैसेज दिया कि ये बात मेरे लोगों तक पहुंचाओ। अब रूह आता था, मैसेज देता था और वापस चला जाता था जहां से वो माँ जी सुनो, खुदा दे कलाम साढ़े आज जितनी उम्र होगी, ये सौन का वेला कोई नहीं, जागन का वेला, जागो। उसके बाद जब रूह जहां से आता वहां वापस चला जाता। और अब जब बात आई नए अहदनामे की, यीशु मसीह के पैदा होने की, तो मरियम के पास जब जब्राइल फरिश्ता आता है, जब जब्राइल फरिश्ता आता है और वो आकर मरियम सदीका को क्या पैगाम देता है? मरियम को क्या पैगाम देता है? सलाम हो मरियम, तुझ पर, मेरे नाम है, तुझ पर और तू क्या होगी, और ये जो बच्चा होगा, ये जो औलाद रिसीव करेगी खुदा की तरफ से, ये किसकी तरफ से होगी? खुदा की तरफ से होगी। और फिर वो कहती है कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती और ना ही मेरा ताल्लुक जो है वो किसी मर्द से है और ना मैं किसी मर्द को जानती हूँ। तो फिर आगे से फरिश्ता क्या जवाब देता है उसे? ये रूह कुद्स की कुदरत से होगा। और जब मरियम इस मैसेज को लेती है, सुने इस बात को, मरियम जब इस मैसेज को लेती है और वो मैसेज किसके पास लेकर जाती है? सबसे पहले बहन लिशबा के पास। किसके पास? मुकद्दस लिशबा के पास लेकर जाती है। एक नबी की माँ है, नबियां दी मामा मुकद्दस होंदियां ने, ठीक है? तो वो एक मुकद्दस लिशबा के पास जब जाती है तो मुकद्दस लिशबा को जाकर वो क्या कहती है? सलाम हो लिशबा। और जब वो सलाम करती है, इस बात को सीखना है आपने, जब वो सलाम करती है और लिशबा कहती है कि मरियम जब तूने मुझको सलाम किया, जब तूने मुझको सलाम किया तो मेरे पेट में जो मेरा बच्चा था वो उछल पड़ा। और पेट में बच्चा कौन था? कोई बता सकते? हाँ जी, यूहन्ना था, बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना नबी था उसके पेट के अंदर, जिसने यीशु मसीह को, आप फिल्म के अंदर देखते हैं, जीसस फिल्म के अंदर जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा है वो नहीं, लेकिन वो किरदार कर रहा है, ठीक है? तो वो जो किरदार कर रहा है वो नबी अलिशबा के पेट के अंदर था। और वो कहती है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा, करे मरियम सलाम। अब सीखे बात को, मरियम करे सलाम तो बच्चा पेट के अंदर उछल पड़े। ये किसके तासुब से है? क्योंकि उसके पेट में जो है वो रूह से भरा है, वो रूह उसकी कुदरत से है, ठीक है जी? अब जब मरियम अलिशबा को मैसेज देती है और जब ये सारा वाक़या होता है तो फिर मरियम जब वापस आती है, जब मरियम वापस आती है तो फिर कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह पैदा हो जाता है। यीशु मसीह जब पैदा होता है तो यीशु मसीह जवान होता है, अपनी खिदमत को स्टार्ट करने के लिए उसने क्या करना होता है जी? आपने मेरे सारे अलग क्या करना होता है यीशु मसीह ने? भाई वो दरियाई यरदन पर जाता है, वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा किससे लेता है? और जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है तो आसमान से क्या आता है? कबूतर की मानत क्या आता है? रूह आता है। और वो अगर रूह आता है तो फिर ऊपर से आसमान भी खुलता है, तो फिर ऊपर से एक आवाज भी आती है। वो आवाज क्या आती है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, और ये क्या करेगा? ये जहान के गुनाहों को ले जाएगा, ठीक है? अब जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा पा लिया, जब यीशु मसीह ने इस बपतिस्मे को पाया तो यीशु मसीह भी क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह रूह से भर गया। जब यीशु मसीह रूह से भर गया तो फिर इब्लीस उसे कहां ले गया? हाँ जी, कहां ले गया? जंगल में ले गया, वीरान में ले गया। तो 40 दिन करके करता रहा, आजमांदा रहा। और यीशु मसीह को वो क्या दिखाता रहा? शान शौकत, तुझे ये घर दे दूंगा, ये बिल्डिंग्स तेरी होंगी, ये इमारतें तेरी होंगी, ये शान शौकत तेरी होगा, ये पैसा तेरा होगा, सल्तनत का मालिक तू होगा, ये महल चुबारे तेरे होंगे। मगर यीशु मसीह क्या करता है? उसको बात को नहीं मानता, मगर उसको क्या करता है? शिकस्त देता है। यीशु मसीह रूह से भरकर जंगल में जाता है और शैतान इब्लीस जो है वो उसे आजमाया जाता है। अब जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया,
जब यीशु मसीह अपनी खिदमत को स्टार्ट करते हैं बपतिस्मे से, फिर अबलीस से सुमाया जाता है, फिर यीशु मसीह 12 शागिर्दों को चुनता है। किनको चुनता है? 12 शागिर्द जब वो चुनता है तो 13वां एक रसूल भी है जिसका नाम पौलुस रसूल है। कितने हो गए? 12 शागिर्द और 13वां रसूल भी हो गया। अब जब यीशु मसीह 12 शागिर्द चुन लेता है तो खुदा उनके साथ साथ रहता और वो भी यीशु के साथ साथ। यीशु मसीह जहाँ कहीं जाता शागिर्द उसके साथ होते, उसके मौजज़ों को देखते, उसकी बरकतें बांटते हुए उसे देखते, उसको माफ करते हुए देखते, उसको मोहब्बत भी बांटते देखते। और फिर क्या होता है, जब यीशु मसीह का वक्त आता है कि वो सलीब पर चढ़ाया जाए, वक्त आता है कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, फिर आसमान पर उठा लिया गया। जब यीशु मसीह आसमान पर, पिछले इतवार हमने ईद सऊद मनाई आसमान पर उठाए जाने की, और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो फिर 40 दिन तक, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर के बाद 40 दिन यीशु मसीह जमीन पर क्या करता रहा? जी, तो तुसी मेरे नाम रहना, क्या करता रहा? लोगों पर, शागिर्दों पर क्या होता रहा? ज़ाहिर होता रहा। यीशु मसीह भी सैर करता रहा, फिरता रहा, मिलता रहा। जो सैर आज हम थोड़ी सी कर रहे हैं ना, यही सैर यीशु मसीह भी 40 दिन तक अपने लोगों को मिलता रहा। लोगों ने भी शक किया। बड़ा खास शागिर्द, वो भी यीशु मसीह को नहीं था जानता, वो मैं नहीं जानता यीशु, फिर तू में कहता कोल आ गए, हाथ मार के हाथ लगा कर देख इन कीलों के अंदर, फिर उसे यकीन होता है। फिर 40 दिन तक जब शागिर्दों को मिलता रहा तो शागिर्दों को उसने क्या कहा, तुम एक कमरे के अंदर क्या रहना? कैद रहना, बंद रहना, और तुमने क्या करना है? दुआ करना। जब वो दुआ कर रहे थे तो कलाम के अंदर हमें आयत एक मिलती है, एक आयत मिलती है। वो आयत ये है कि वो सारे रूल कुल से पानी कितने ना भर गए? रूल कुल से भर गए। किससे भर गए? अब जब रूल कुल से वो भर गए तो वो क्या करने लगे? क्या बैठे रहे? क्या जब कमरे के अंदर जब रूल कुल आया, क्यों जी आने साहब को बैठे रहे? वो खुदा वो दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ करे रूह जब उन पर नाज़िल हुआ, उन पर आया, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो सारे के सारे गैर जुबान बोलने लगे। कौन सी जुबान? और जब वो गैर जुबान बोल रहे थे, कोई इंडिया, मिसाल के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, कोई इंडिया से था, कोई लुबनान से था, कोई मशरक से था, कोई मगरब से था, कोई जनूब से था, कोई बांग्लादेश से था। लहरा लहरा जुबानों वाले लोग थे, मगर जब वो गैर जुबान बोल रहे थे तो जुबान क्या लग रही थी? एक ही लग रही थी। मेरी बात को समझे, अभी आपको एंड पर मैं लेकर आऊंगा। जब रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ तो फिर क्या हुआ? ऐसा लगा, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है एक सी जुबान बोलने लगे। अब यहाँ पर एक बात, जितनी मैंने आपसे बातें की है, आपको पाखरू की समझ आई? पाखरू की अगर मैं आपसे पूछूं, जी भाई अभी तक आपने क्या सीखा है? पाखरू क्या है? जी कोई बात नहीं सर, मास्क ला लो, बस नहीं लाया जी। मुझे वो देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे, बोले जी शो के साथ। पाखरू होती का की सीखा है? ठीक है, ऐसी जल्दी से आमीन जी। बेटा सलीम साहब की बेटी, जल्दी से पुत्र, शाबाश जी। बेटा सलीम साहब की बेटी हो ना? अच्छा अच्छा, चलिए बताएं क्या सीखा आपने? जितनी देर में बोल रहा हूँ 5-10 सॉरी, पाखरू हम पर नाज़िल हुआ था जी। संडे स्कूल यूथ, जल्दी से की सुने, 10 मिनट ना बोले, मैं आगे बढ़ रहा, जल्दी का जी। बाबू बाबू से सुन, फिर तेरी बारी। मदद करता है जी बेटा। पाखरू एक मददगार है जो हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। क्या करता है? आए यही हवाले को पढ़ बेटा, अमाल 5 है। 1 मिनट निकाल लेने दे इस बच्चों को, ताकि उनको भी पता चले क्या लिखा है। शाबाश, जल्दी से। पाखरू क्या करता है? आप सीखने वाले 3 हवाले, उसके बाद हम बंद करेंगे काम, मगर सीखना आप जी बेटा। जी आमीन।
गिर पड़ा, वो गिरा क्यों था? क्योंकि उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसने झूठ बोला था। आज हम खिदमत करते हैं, आज हम प्रस्तिश करते हैं, हम खुदा के काम करते हैं, तो खुदा के कई लोग खादम आपने देखे होंगे, सुने होंगे लोगों से कि उसने झूठ बोला या उसने किसी का हक खाया खादम ने, तो उसके साथ क्या हुआ? किसी ने सुना? ओके, हननिया ने भी ऐसे किया, वो भी झूठ बोला उसने पलूस के साथ। तो पलूस ने उसे कहा कि तूने मेरे साथ क्यों झूठ बोला, क्यों तूने ऐसे किया? तो फिर जब रूह होता है, हम रूह के अंदर जब होते हैं तो हम रूह के खिलाफ नहीं जा सकते। पाक रूह जिसके अंदर होता है उसकी जिंदगी तब्दील होती है। जब पाक रूह भी होवे तो जिंदगी भी तब्दील ना होवे तो फिर ड्रामेबाजी। सुन ले बात, आज आपको ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे, वो रात को मैंने कहा भाई खुदा ने मेरा भाई ना तो बपतिस्मा लिया, ना तो माफी मांगी, जुआ खेला तू ना छड्या, शराब पीनी तू ना छड्डी, बेचनी तू ना छड्डी, तो तेरे साथ खुदा कैसे बात करे? यहाँ पर एक मिसाल भी है कि कैसे बात कर रहा है, और उसकी बात पर क्या आया हमें यकीन भी करना चाहिए। ऐसे लोग आपको बहुत से मिलेंगे, मुझे ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। मगर आगे एक हवाला और देखेंगे, क्रंथियों, पहला क्रंथियों और उसका 2 बाब 10 आयत, बड़ी जबरदस्त बात, 10 बाब, पहला क्रंथियों बेटा 10 बाब और उसकी 11 से 12 आयत। टाइम थोड़े होने की वजह से मैं पढ़ता हूँ ये बातें, सॉरी। और तुम, लेकिन हम पर खुदा ने उसको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें कि खुदा की कई बातें की दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। क्या कर लेता है जी? रूह क्या की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। एक और हवाला देखेंगे, यही पहला क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 8 आयत। ये सुन ले, रूह क्या करता है? तय की बातों को, अंदर की बातों को भी जान लेता है। मिसाल के तौर पर सुने, हवाला पढ़ने से पहले बेटा सुने, पाक रूह तय की बातों को भी जान लेता है। इसका मकसद ये है कि जिसके पास, बाइबल में भी लिखा है, जिसके पास रूह कुद्स की नेमत है, जिसके पास पाक रूह है, वो एक शख्स को जान लेगा जो जिस्मानी है, रूहानी को पहचान लेता है, और जिस्मानी रूहानी के अंदर नहीं घुस सकता। सुने, जो रूहानी है वो जिस्मानी के अंदर घुस सकता है और तय की बातों को जान लेता है। जिस तरह मरियम के पेट के अंदर यीशु मसीह था और वो अलिशबा जो थी वो क्या हुई, उसका बच्चा क्या हुआ? उछल पड़ा और वो रूह से ममूर हुआ। जब आप इसकी हिस्ट्री में इसको थोड़ा सा पढ़े, इसके जाएंगे ना भेद के अंदर, तो वो उछला का मतलब ये है कि वो भर गया रूह से। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आज हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इस हालत के अंदर हों, वो इस हालत के अंदर हों, और अगर उनके पाक रूह वो रिसीव कर लें, वो पाक रूह को हासिल कर लें, तो उनके पेट के अंदर जो औलाद है वो भी पाक रूह से भर जाएगी। क्योंकि ये भेद है। अगर मरियम के सलाम करने से अगर मुकद्दस अलिशबा का बच्चा रूह से भर सकता है, तो आज भी ये रूह वैसा ही है, ये चेंज नहीं हुआ, ये बदला नहीं, ये बदला नहीं है, ये वैसा ही है, और इसकी बरकत भी ऐसी ही है, यकसा है। हाँ जी, 12वां बाब 8 है, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े हवाले हैं, लेकिन हम चंद चीजों को सीखते हैं। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह के मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही हैं, एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। आमीन। क्योंकि एक को रूह के वसीला से कलाम की हिकमत का कलाम अनायत होता है, पाक रूह के वसीला से। कई खादम आपने देखे होंगे
जब कलाम करते हैं तो लोग बैठे बैठे चिल्ला उठते हैं, लोग बैठे बैठे बीमार शिफा पा जाते हैं जब खुदा का बंदा कलाम सुनाता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है, खुदा का बुजुर्ग पौलुस रसूल, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत के कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का, इल्म का। ये जो पाक रूह है ये बरकतें बांटने वाला है, किसी को कलाम सुनाने की, किसी को इल्म सीखने की, इल्म सिखाने की, टीचिंग की, और इसके बाद क्या है, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को एक रूह से शिफा देने की कुदरत। जिसके पास पाक रूह होता है, मैंने पहले आपको बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके पास पाक रूह होगा वो तेरी बातों को जान लेगा। जब कोई बीमार आएगा तो रूह उसे बताएगा कि इसकी बीमारी क्या है। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ हम जाके आप दसने तो आंडे दे कलमा फेर देता है। जब आप किसी रूह से भरे खादम के पास आएंगे तो वो आपके अंदर की तय की बातों को जान लेगा, रूह से बताएगा इसको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये दुआ की जाए। जैसे मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं अगर मुझे अभी अगर रूह गाइड करे, मैं कहूँ सलीम साहब की बेटी या सलीम साहब की बीवी को, बच्चों को ये मसला है या होने वाला है, तो ये पाक रूह की बरकतें हैं। आने वाले वक्त को बता देना, नबूवत की बातों को बता देना, अंदर की बातों को बता देना। और ये जो पाक रूह है ये मिलता कैसे? आपका सवाल हो सकता है कि जी असी अगर पाक रूह पाना है तो किस तरह पा सकते हैं? सबसे पहले यीशु मसीह के आगे अपने गुनाहों का इकरार करना, फिर बपतिस्मा लेना, फिर खुदा से दुआ करना। ये पैसे देने से नहीं मिलता, आपकी देके देने से नहीं मिलता। बेशक वो जाके दरबारा की दो तो भावे चर्च के अंदर दो, क्यों जी बाबा जी? ये देके देने से भी नहीं मिलेगा, ये आपको खराते बांटने से भी नहीं देगा, ये आपको अच्छे काम करने की वजह से भी नहीं मिलेगा। ये आपको अगर मिलेगा तो वो इस वजह से मिलेगा, पहली बात गुनाहों की माफ़ी, खुदा के हजूर में सलीब के नीचे रह के, एक, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा दुआ करने से और रोज़ा रखने से। आमीन। ये इस वजह से मिलता है। आखिरी बात को सीखेंगे, अमाल ही की किताब है, दूसरा बाब और उसकी 38 आयत। बड़ी खूबसूरत बात इसके अंदर लिखी हुई है, वो कि सब है लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए ये बात जो है वो हम सबों के लिए है। 2 बाब 38 आयत। जी बेटा कोई भी निकाले, पढ़ने में रहनुमाई करे, शाबाश जल्दी से। उसने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और वह रूह कुदस के नाम में पाओगे। आमीन। क्या करेंगे जी? पतरस ने किन से कहा? पतरस ने उनसे कहा। किन से? जो पतरस की बात को सुन रहे थे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मिसाल के तौर पर, मैं कह रहा हूँ कि भाई तौबा करो, तो कल को आप कहेंगे जी पादी आसिम ने कहा, पादी मजीद साहब ने कहा था, मगर यहाँ पर पतरस रसूल है और तब पतरस रसूल लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था, खुदा के बारे में बता रहा था। तो जब खुदा के बारे में वो बता रहा था, खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था,